امریکہ اور نیٹو کے درمیان گرین لینڈ پر ابتدائی معاہدہ طے پا گیا، محدود اختیارات اور معدنی وسائل میں حصہ ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے گرین لینڈ اور پورے آرکٹک خطے کے لیے معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کر لیا۔ معاہدے کے تحت امریکہ کو گرین لینڈ کے چند منتخب علاقوں میں اختیارات حاصل ہوں گے۔ روس اور چین کسی بھی صورت اس معاہدے میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ وہاں اپنا جدید گولڈن ڈوم سسٹم بھی نصب کرے گا۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی، جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ڈیووس سے واپسی پر طیارے میں گفتگو، کہا ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورس تعینات کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں، نہیں چاہتا کہ کچھ ہو، تاہم ایران پر گہری نظر ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو ایک بار پھر خبردار۔ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فوری رد عمل دیں گے، جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سربراہ جنرل محمد پاکپور کا واضح پیغام، کہا کہ ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں، ہمارا ہاتھ ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری طاقت کے حوالے سے غلط اندازے لگانے کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈیووس میں بورڈ آف پیس کے قیام کے حوالے سے اہم پیش رفت، عالمی رہنماؤں نے مسودے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بورڈ آف پیس کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب اور ترکیہ کا بورڈ آف پیس چارٹر پر دستخط، آذربائیجان اور بلغاریہ کی عالمی امن اقدام میں شمولیت۔ پیراگوئے اور قطر نے بھی بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے۔ ارجنٹائن اور آرمینیا کی بورڈ آف پیس میں شامل۔ ڈیووس میں بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کی تقریب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ تقریب کے دوران عالمی رہنماؤں کی توجہ پاکستان کی قیادت پر مرکوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم۔ پاکستان کی عسکری قیادت کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کا اظہار ہوا۔ عالمی رہنماؤں کا امن، تعاون اور مشترکہ کوششوں کے عزم پر زور۔ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کے بعد خطے میں استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا گرفتار۔ ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار کیا گیا۔ وہ اور ہادی علی چٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ دونوں وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں تھے۔ پولیس اسکواڈ بھی ہائی کورٹ بار کی وین کے پیچھے تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے صدر واجد علی گیلانی نے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال کی کال دے دی۔ وکلاء کے نام ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے واجد علی گیلانی نے کہا کہ گزشتہ روز یقین دہانی کرائی گئی کہ وکلاء کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مجھ پر اور سیکریٹری بار پر تشدد کیا گیا، گاڑی کے شیشے توڑ کر ایمان اور ہادی کو گرفتار کیا گیا۔ وکلاء ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے 1534 پلاٹوں کے الاٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ سے متعلق اجلاس پہلے مرحلے میں جہلم میں 149، قصور 129، فیصل آباد میں 84 اور لودھراں 49 پلاٹ بذریعہ قرآن دازی دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے پلاٹوں کی جلد از جلد قرآن دازی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ کہا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے فنڈز بڑھانے کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے 21 ارب 53 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس میں شہر کی خستہ حال سڑکوں، نالوں، سیوریج، واٹر سپلائی اور اسٹریٹ لائٹس کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ منظور۔
वज़ीर आला सिंध की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बर वक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में रेंजर्स की नॉर्दर्न बाईपास के इलाके में बड़ी कार्रवाई। ईरानी तेल की स्मगलिंग और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई गैर कानूनी डीजल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 3 निजी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ की गई। 40,500 लीटर ईरानी डीजल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। डीजल की मजमूई मालियत तकरीबन 10.4 मिलियन रुपए बनती है। गिरफ्तार मुल्जिमान को बरामद शुदा ईरानी डीजल समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आग 2 घंटे बाद नहीं बुझाई जाती, फौरी इकदाम होता है। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्जाम लगा दो कि वो क्यों गया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर मौजूद ही नहीं थे। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। गवर्नर सिंध ने जिम्मेदारों का तयन करके फौरी सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मादनी शोबे में तारीखी पेशरफ्त। रेकोडेक मंसूबा मुल्की मईशत के लिए कामयाबी की आला मिसाल बन गया। SIFC की सहूलतकारी और विजन पाकिस्तान की पॉलिसियों ने आलमी शराकतदारी और सरमायाकारी के नए मौके पैदा किए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान के दरमियान अहम मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के मादनियात और तवानाई, सरमायाकारी और तकनीकी शराकतदारी पर इत्तेफाक। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है बर्ग गोल्ड की रेकोडेक प्रोजेक्ट में कामयाबी पाकिस्तान कनाडा मादरी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद है। ट्रंप शी मुलाकात भारत के लिए खतरे की घंटी। अप्रैल 2026 में अमरीकी सदर और चीनी सदर की बीजिंग में मुलाकात के इम्कानात। गैर मुल्की जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक मुलाकात अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ ताइवान और यूक्रेन तनाज़ात के खतरनाक कम कर सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2025 में ट्रंप को बीजिंग दौरे की दावत दी। मुलाकात को अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया था। सदर ट्रंप के टैरिफ और तिजारती ताख़ीर ने भारत अमरीका ताल्लुकात को मुतासर किया। पाकिस्तान ने शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी की तमाम सूरतों में शदीद मजम्मत करता है। शाम में सियासी व इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। इसराइल की शाम में खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। मानसहरा, बालाई गिलगित, शांगला, लोअर दीर, महमंद, कालाम और अकजई, चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गईं। पाक फौज के जानिब से बर्फबारी के दौरान तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मशगूल। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की जानिब से तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही है। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। कोयटा में भी दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। चमन में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
सौसत ड्राई पोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ, इलाकाई खुशहाली और कौमी तरक्की का अहम रास्ता बन गया। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में मकामी शहरियों को सहूलियात और तरक्की के नए मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। ड्राई पोर्ट सी पैक का कलीदी तजारती गेटवे है और पाक चीन ज़मीनी तिजारत के लिए मरकजी रास्ता फराहम करता है। सौसत बंदरगाह गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक कौमी सप्लाई चैन और तिजारती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। तिजारती सरगर्मियों के नतीजे में गुज़श्ता साल 22 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। मकबूजा कश्मीर में सहाफत पर शब्द खून, मोदी के नाम नहाद जमहूरियत का असल चेहरा आश्कार। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में सच बोलने वाले सहाफ़ियों को थानों में घसीट कर खौफ की फ़ज़ा मुसल्लत कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद के मुंतज़मीन की मालूमात जमा करने की मुहिम को मुनज़्ज़म दबाव करार दिया। बरतानवी जरीदा के मुताबिक मोदी के हुक्म पर मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को थाने तलब करने पर शदीद रद्द अमल का सामना है। मसाजिद की प्रोफाइलिंग की खबर शाया करने पर श्रीनगर में सहाफ़ियों को साइबर पुलिस ने तलब किया। सहाफ़ियों पर बेजा पाबंदियों से मोदी ने मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त को अमलन गैरकमाल बना लिया। तुर्किया ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा, अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। तुर्किया गजा से मुतालिक एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी फाल किरदार अदा कर रहा है। गजा अमन मंसूबे में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। तुर्किया के वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर गौर किया जाएगा। ईरान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ सख्त इक़दामात। मुनशियात के मुकदमात में फांसियों और मुल्क बदरी के अमल में तेजी आ गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के कज़वीन जेल में एक अफगान शहरी समेत 7 कैदियों को फांसी दे दी गई। अफगान कैदी खैरुल्लाह गलजानी को मुनशियात के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई गई थी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के मुताबिक ईरान ने 2025 में 85 अफगान शहरियों को संगीन जराइम और मुनशियात मुकदमात में सजाए मौत का मुर्तकिब करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से कबल अच्छी खबर, शाहीन परवाज के लिए तैयार हो गए। ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान रोशन हो गया। तिब्बी माहिरीन और टीम मैनेजमेंट ने तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद शाहीन शाह आफरीदी दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए फिट करार दे दिए गए। शाहीन शाह आफरीदी बिग बैश के दौरान मैच में दाएं घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। और पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से कबल शानदार इश्तिहारी वीडियो जारी कर दी। प्रोमो वीडियो ने भारतीयों को आग बगोला कर दिया। वीडियो में पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और क्रिकेट के मोहब्बत को दिखाया गया। वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई शख्स से टैक्सी ड्राइवर पैसे नहीं लेता, वो शुक्रिया अदा करता है लेकिन हाथ नहीं मिलाता। हाथ ना मिलाने पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाथ मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। भारतीय टीम पर तंजिया प्रोमो जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।